and whenever there would be classes, inshallah, people would be back in the schools, right? Okay. If I would say, as other maybe in the first class, you have also discussed about making your groups, like the WhatsApp groups. Same is the case would be here, and a student who would be the volunteer, and he or she would be making a group, and you are going to be adding me as well. And WhatsApp, I find it very easy in the WhatsApp group when people are like, I share material and you also take from there. I can also share with you the slides I use, and as well as I would send you some notes on regular basis, and I would also share with you some PDF files of the books so that you can also read those books for the reference, and I will guide you on the pages as well, that what pages are there that you are going to be studying. And we will keep on discussing many things on how to cover it, how to prepare for the exam. We will keep on doing it, right? So inshallah, we start from today. The topic, the subject you have is business communication and report writing. And I would say something about it, that business communication, you know very well, nowadays is going to be a very important, you can say, skill. If you are working like in a company or any firm or any government institute or organization, or I mean, it's going to be private, whatever, but your business communication skills, your communication skills are going to be on the top. Then report writing is going to be, you can say it's an umbrella term. You won't say that we are going to be just discussing how to write reports, but there are many things falling in the section of correspondence, right? So first, I would today I'm going to be introducing myself with you. As I told you, my name is Nahid Bakar, and I have written a little very short profile on this slide so that you get better idea of myself. I am going to be teaching you here BCRW, Business Communication and Report Writing. I have experience of more than 22 years. You will be surprised to learn that it's going to be two experienced person I am. And the subject I've been teaching, like I would say I have expertise on that. These are communication, presentations, business English, correspondence, report writing, CV. All these are going to be my special areas where I teach. I not only teach, but I train as well. So you can also, I mean, read the, I have written my profile over there. I'm a corporate trainer. I teach teachers as well. And you can say teachers trainer as well. I write books. I compose syllabus. I have written many books and past paper solutions and articles as well. I used to write for the newspapers. And along with that, I'm even organizer wherever I like work as a faculty, usually permanent faculty, and I also am in the role of examiner. So you can say it's going to be not, I would say, many achievements, but it's a few on my page that I do and I've been doing. My university was Punjab University, Education University, and Lahore College. So these are my institutes from where I got my education. And I live in Lahore, and I've been living in Lahore since my birth, right? So I'm pure Lahoriite, you may say. Okay, but I'm not that Lahoriite that's going to be eating city pie and, morning nashta and all that. Not that type, But I really appreciate people if they are doing it. And I know most of you are not from Lahore, but every city is going to be having a speciality. I know that's the people, not only the people, they have different traits over there. Along with that, they have different style, living way of eating habits, you may say. So there are different people. We have a big country having lot many cultures, right? Okay. Before we start that, I would like you to go through the syllabus, and I would share with you the syllabus which I have actually downloaded from your website. So you are supposed to download it as well. You see that this is going to be the subject number 3 for level 1. And here they have also given over there the weightage, that if when we are preparing for exam, we are supposed to consider the weightage, that we are laying emphasis on the particular area.
But you know, one thing very important I would tell you, my own experience says, when we sit in the examination, you know, there is going to be all material in the form of a data there, data bank there. What they do, they are of giving you the paper, and sometimes the paper is not going to follow the weightage as it is given. But I would keep on like telling you which topic is very important from examination point of view, right? So just we do the, okay, students, you may be asking me something. At the end of the class, I would ask you certain things. I may reply to that, and definitely make your mind up to this idea that you are going to be, some of you would be, and our people who are helping me over here, your managers, they would also assist me and you as well to create group. You are going to create a group that's going to be WhatsApp group. It's all up to you whether people are going to be making into 2 groups or 3 groups, or maybe male and female, they are going to be different groups. But I would like to have groups so that I would be sharing with you regularly the material I want you to learn, right? So I would be doing it. So coming to the topics, just go through the topics. I mean, just have a look. It's going to be a bird's eye view, I would say. It's going to be just a window shopping. We are not going to do shopping right now. We are just doing window shopping and going through the topics. The first topic is, part A is going to have weightage of 35%, fundamentals of effective business communication. You know, this topic is all about what communication is, what are different processes, like what's the process of communication, what are the components, you can say, or the factors that are making communication possible, and so what are the characteristics of successful communication, what are the barriers, because you know things don't go that smooth. इतनी सीधा सीधा सब कुछ नहीं जाता. I say something to you, तुम्हें बात अगर समझ नहीं आती, तो there are going to be lot many barriers, they are interrupting. आपकी तरफ भी हो सकते हैं, मेरी तरफ भी हो सकते हैं, तो बहुत सारे barriers जो हैं वो problem create करते हैं. उसके बाद हमने we have to study about communication in organization. एक तो हमने general communication की बात की, that what communication is actually, whether you are at home talking to your siblings, your parents, घर वाले लोगों के साथ बात कर रहे हो, or you are talking to your friends, वहां पे बात कर रहे होते हो, ठीक है? तो आपका जो आप जिस तरीके से बात कर रहे होते हैं, we are talking about that. But particularly when you are in an organization, और वहां पे तुमने कैसे बात करनी है, मुझे पहले ये तो पता चले कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रही हूँ या आप काम कर रहे हो, उसका क्या तरीका है, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दे हैव, कौन किससे बात कर सकता है, उन्होंने क्या हमें पैरामीटर्स दिए हुए, वी हैव टू टॉक ऑन इट. देन वी वुड आल्सो सी देयर इज गोइंग टू बी अ फॉर्मल नेटवर्किंग हो जाएगी वहां पे, जहाँ पे लोग जो है एक नेटवर्क सा बनाएंगे, एंड दे कनेक्ट विद लाइक देम, दे आर टॉकिंग, इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन हो रही है, या एक ऑर्गेनाइजेशन जो है दैट्स गोइंग टू हैव जोग्राफिकली डिस्पर्स्ड ऑफिसेज हैं, कोई रीजनल ऑफिसेज हैं, हाउ दे आर कम्युनिकेटिंग टू देम, किस तरह से बात कर रहे होते हैं, ये सारा हम देखेंगे. इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि व्हेन वी आर इन अ वेरी फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट, बड़े ही फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे होंगे, वहां पर भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगी. लाइक वी कांट स्टॉप इट, कि आप अगर अच्छे कॉलीग हैं एंड यू आल्सो बिकम गुड फ्रेंड, तो आप कैसे फ्रेंड से बातें नहीं करोगे, करोगे ना. आप कोई ना कोई उनके घर की बात, आप अपने घर से बात कोई करके आए हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट योर, लाइक हम कम्यूट करके आ रहे हैं, रास्ते में कोई चीज देखी है, या कोई नई मूवी आ गई है उसकी बात करनी है, क्रिकेट मैच चल रहा है उसकी बात करनी है, फुटबॉल में क्या हो रहा है, हम वी टॉक, राइट, वी टॉक ऑन पॉलिटिक्स इवन, बात कर, though it's not good idea to talk on politics when you are in office, क्योंकि उससे लड़ाई बड़ी हो जाती है, तो it's better you stay away from politics and all that. और एक politics वो भी होती है, they are actually within the organization, लोग जो हैं वो एक दूसरे की leg pulling कर रहे हैं, एक लोग दूसरों के साथ conflict आ जाते हैं, तो these things we also would be seeing इस subject के अंदर, हम वो सारी चीजें पढ़ेंगे. अब मैं आपको एक छोटी सी पहले बात, बिफोर आई मूव ऑन टू गिविंग यू इंट्रोडक्शन ऑफ द सिलेबस, एक बात और बड़ी जरूरी बता दूं. What subjects I take, like I would say, I won't say कि मैं सिर्फ communication पढ़ा रही हूँ, I would say I teach soft skills. अब कोई पूछे ये soft skills क्या होती हैं, there is what is the difference between soft skills and hard skills, ये क्या होती हैं.
हार्ड स्किल्स जो है वो एक टेक्निकल चीज है जो आपको आती है, आप वो दिखा सकते हैं। मगर जो सॉफ्ट स्किल्स है ना, वो आपके अंदर से हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी अच्छी प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपकी एनालिटिकल स्किल्स, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये सब कुछ क्या है? लोगों से बात कर सकते हो, इंटरपर्सनल स्किल्स हैं तुम्हारी, ठीक है, या टीम वर्क कर सकते
डिफरेंट कल्चर के लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को डिफरेंट तरीके से पिक करते हैं। मैं आपको ये बात भी बताऊंगी। हम ना सिर्फ सिलेबस को कवर करेंगे, मगर हम एक बहुत अच्छा इंसान बनने की भी कोशिश करेंगे। इट डजंट मीन दैट खुदा ना खास्ता कि आप जो है वो अच्छे इंसान नहीं है। आई जस्ट वांट टू से वेल ग्रूम्ड पर्सन। आप समझ रहे हो ना? वेल ग्रूम्ड का मतलब है कि आपकी ग्रूमिंग हो जाए, आप बहुत सी चीजों को अंडरस्टैंड करें, आपकी पर्सनालिटी जो है उसमें डेवलपमेंट आए और टेंजिबल चेंज आए कि आप जो है अभी तक आपने एफए, एफएससी, ए लेवल्स जो भी आप लोगों ने किया होगा, उसके बाद व्हाट यू डू नेक्स्ट, आप उसको कैसे इंप्रूव करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, हम इस पे बात करेंगे। फिर आपका एक टॉपिक आएगा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, बहुत ही ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके कुछ यूनिवर्सल्स हैं, कुछ एक्सियम्स हैं, कुछ पर्पसेस हैं। ये सारा कुछ मैं आपको जहां जहां से मैं समझती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ना, आई विल बी शेयरिंग विद यू नोट्स। और आई टोल्ड यू कि मैं आपके साथ बुक्स जो है वो आप डाउनलोड कर लोगे, बुक्स आपको दे दूंगी, वहां से पढ़ोगे, नोट से पढ़ोगे और इंशाल्लाह आपकी तैयारी होगी। एंड आई विल बी शेयरिंग विद यू प्लेंटी ऑफ एमसीक्यूज, ताकि तुम्हें पता हो कि एमसीक्यूज कैसे बनते हैं। और एक और मैं आपको बहुत अच्छा टिप बताती हूँ कि जब भी आपको टाइम मिला करे, लाइक यू हैव 3 days क्लासेस एंड देयर आर सो मेनी डेज ऑफ, तुम्हारा वीकेंड तो बहुत ही लंबा हो गया अभी, तो व्हाट वुड यू डू कि आप अगर एक टॉपिक पढ़ते हो तो यू कैन गूगल, इवन सर्च करो, तो तुम्हें उसी टॉपिक पे एमसीक्यूज मिलेंगे, सॉल्व एमसीक्यूज मिलेंगे या एक्सरसाइजेस मिलेंगे, यू कैन डू योरसेल्फ एंड यू कैन सॉल्व देम। आप ऐसा भी कर सकते हो, अपने टाइम को प्रोडक्टिव बनाइए। यू आर डूइंग समथिंग विच इज वेरी वेरी प्रोडक्टिव। ठीक है, आपने ये करना है। उसके बाद आपके पास रिटन कम्युनिकेशन आ जाएगी, जिसमें आपने देखना है कि जी जब आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे। यहाँ पर एक चीज जो मैं जिससे डिसएग्री करूंगी, आपके सिलेबस में लिखी हुई है, उन्होंने कहा है कि जी 7 C's जो है ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम पढ़ेंगे। बट बिलीव मी, जो ये 7 C's की बात लिखी हुई है, अगर आप में से somebody is familiar with the term already, तो ये रिटन भी होती है और ओरल भी होती है। आपने इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट इट, बहुत ही प्रीमेच्योर हो जाएगा। मैं आपके साथ जब इस टॉपिक पे आऊंगी तो बहुत डिटेल में आपसे बात करूंगी। इसके बाद जी आपके पास नेक्स्ट 40% का आपके मैसेजेस, रिपोर्ट्स एंड प्रपोजल एंड मेमोज, सर्कुलर्स, ये सारे बनाने सीखोगे। और ना सिर्फ ये कि बल्कि लेटर्स जो है उसका फॉर्मेट क्या होगा, विच फॉर्मेट इज लाइक acceptable, which is not acceptable, how companies are going to be producing some in-house उनके अपने होते हैं लेटर स्टाइल होते हैं, जो कि लेटर पैटर्न्स फॉर्मेट बनाते हैं, वो किस तरह लेटर हेड्स होते हैं वो कैसे यूज करेंगे, वो सारा आपको बताऊंगी। रिपोर्ट्स कैसे लिखेंगे, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स, एंड आल्सो लॉन्ग एंड शॉर्ट रिपोर्ट्स क्या होती हैं, हम इस पे बात करेंगे। उसके बाद अगला जो आपका आ रहा है पार्ट सी आ गया, इसमें हम केस एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स की बात करेंगे। फिर वही बात है कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल में आपको केस स्टडी दी जाएगी, आप कैसे एनालिसिस करोगे, आपको प्रेजेंटेशन अगर देनी है तो उसके लिए हाउ वुड यू प्रिपेयर, हाउ वुड यू मेक योर प्रेजेंटेशंस, कैसे बनाओगे, ये सारा कुछ हम इस पे करेंगे और देखेंगे कि कितना हम इसको बेहतर तरीके से थोड़ा इंटरैक्टिव करके हम कैसे कर सकेंगे। और जो आपका लास्ट पार्ट आ जाता है बच्चों, दैट्स गोइंग टू बी द एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रुप कम्युनिकेशन है आपकी। इसमें एम्प्लॉयमेंट कम्युनिकेशन की अगर आप बात करते हो तो यू आर टॉकिंग अबाउट राइटिंग सीवीज, हाउ वुड यू बी परफॉर्मिंग इन जॉब इंटरव्यूज, आपने क्या कैसे करनी है, कैसे तैयारी करनी है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसमें थोड़ी सी इंटरनेट की कम्युनिकेशन की बात भी आ जाएगी, वो भी हम आपको बताएंगे। ईमेल क्या होती है, कैसे होती है, आपको बिल्कुल आता होगा पहले से, बट आई वुड से द टेक्निकलिटीज जो है वो आपसे बात करेंगे। इसके बाद ग्रुप कम्युनिकेशन की बात करेंगे, व्हेन पीपल आर सिटिंग इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप, फॉर इंस्टेंस दे आर कंडक्टिंग मीटिंग्स और दे आर हैविंग काइंड ऑफ नेगोशिएशन में भी, और ग्रुप है और कोई डिफरेंट मीडिया से बात कर रहा है, कोई सेमिनार वर्कशॉप है, इसमें सारी चीजों के ऊपर हम और करेंगे। तो दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट टॉपिक एक्चुअली वी आर गोइंग टू कवर। तो आपने देखा ये सारा कुछ जो है, इट्स ऑल कम्युनिकेशन, not only spoken but as well as it's going to be written, because you are if very good at writing, तो आप देखिएगा थोड़ी ही देर में अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आप एक जॉब पे हैं, तो आप देखिएगा यू विल स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड, आपका क्राउड पीछे रह जाएगा,
आप प्रोमिनेंट हो जाएंगे बीच में। क्यों हो जाएंगे? बिकॉज योर बॉस इज गोइंग टू रिलाई अ लॉट ऑन यू। वो आपको हर तरह के जो है वो काम आप पे रिलाई कर सकता है। जैसे मुझे याद है बहुत अर्ली डेज में, बिकॉज आई स्टार्टेड टीचिंग ड्यूरिंग माई एजुकेशन। मैं जब यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी तो मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था, और मेरी साथ क्लासेस भी होती थी और मैं पढ़ाती थी। तो दिस इज वाई मैं आई कम अक्रॉस मेनी मेनी स्टूडेंट्स हु आर टू लाइक मेच्योर, और बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बट दे ऑलवेज टेल मी कि मैंने उनको पढ़ाया हुआ है। तो आई फील जस्ट काइंड ऑफ प्राइड इन दैट। कि मुझे याद है कि मैंने एक दफा एक वर्कशॉप कराई थी व्हेन आई वाज माई सेल्फ स्टूडेंट, जैसे मैंने भी आपको बताया है। वो एक वर्कशॉप थी, किसी कंपनी की ट्रेनिंग आई थी, और मेरे साथ जो यहाँ पे सीनियर ट्रेनर थे, ये आईसीएमई की बात कर रही हूँ मैं, ट्रेनर थे, ही वाज अबाउट टू लीव, उन्होंने किसी फॉरेन कंट्री के लिए चले जाना था। तो हालांकि मुझे ज्वाइन की थोड़ी ही देर हुई थी, तो ही डिसाइडेड कि आई वुड कंटिन्यू हिज वर्कशॉप, उसकी वर्कशॉप को मैं आगे चलाऊंगी। तो एक दिन मैं बहुत घबरा गई कि हाउ कैन आई डू, मेरा तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं। दो आई वाज अ डिबेटर इन माय टाइम ऑफ लाइक, मैं जब पढ़ती थी तो मैं एज अ डिबेटर थी मैं। तो मैंने और मैगजीन एडिटर और इस तरह के काम मैंने बहुत किए हुए थे। बट स्टिल टीचिंग इतने बड़े बड़े लोगों को, जो कि कुछ लोग ऐसे भी थे, देवर 50+, 30+, 40+, इस एज ग्रुप के लोग, और उनको मैं पढ़ाने लगी। तो उन्होंने कहा नो यू कैन डू दैट, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट पर्सन, कि उनके करने से मुझे बहुत ज्यादा एक कॉन्फिडेंस मिला, और मैंने उनको पढ़ाना शुरू कर दिया। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो कम्युनिकेशन आपकी स्किल्स हैं, आपने आज से ही कोशिश कर लेनी है कि आप कैसे बेहतर करेंगे, राइट? अब जैसे मैं बच्चों को ये बताया करती हूँ कि व्हाट यू डू इज कि आपने कोई ना कोई स्कॉलर ले लो, किसी स्कॉलर को सुना करो, और कोशिश करो कि अंग्रेजी में हो। अगर उर्दू में स्कॉलर को सुनते हो तो तुम्हारी नहीं बेहतर होगी, ठीक है ना? तुम्हारी जो कम्युनिकेशन है वो बेहतर नहीं हो पाएगी। तो इसलिए इंग्लिश वाले को सुना करो, बी इट एनी जो होते हैं रिलीजियस स्कॉलर है उसको सुन लो। यू आर गोइंग टू बी लर्निंग योर गेटिंग नॉलेज ऑफ कुरान रिलीजन का, आपको बेहतरीन आएगा तरीका। और इसके अलावा टेड टॉक्स हैं, ठीक है, TED, टेड टॉक्स, यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब। अगर जिनको नहीं पता, आपको अगर ये सर्च करो कि जी लेटेस्ट या मोस्ट वॉच्ड टेड टॉक्स या बेस्ट टेड टॉक्स, तो आपको कोई ना कोई ऐसा स्पीकर मिलेगा जो कि क्या कर रहा है, आपको अपनी लाइफ के ऊपर जो उसने कोई रिसर्च की है वो आपको बता रहा है, अपनी लाइफ का क्रक्स आपको बता रहा है। वो आपको ऐसी ऐसी चीजें बताते हैं कि आपका नॉलेज जो है बहुत ज्यादा बढ़ता है। प्लस यू ऑल्सो अंडरस्टैंड देम and understand how to speak English, and what words they have used you can also use that. और एक और चीज बस आपको बता दूंगी मैं, जब हमारे भी ग्रुप बन जाते हैं तो यू कैन आस्क मी लॉट मेनी क्वेश्चंस ओवर देयर। मेरी आदत है कि मैं रिकॉर्ड करके भी आपको मैसेज जो है दे दिया करती हूँ, तो हम इसको इस पे यानी करेंगे। और एक और चीज है कि आप मूवीज वगैरह भी वॉच किया करो, ठीक है? वो वाली मूवीज आप अपनी पसंद से बहुत अच्छी, जिसका अगर सबटाइटल्स वाली हैं तो जरूर देखिए, बिकॉज यू कैन, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड अ पर्सन, एटलीस्ट यू अंडरस्टैंड द सबटाइटल। कोई अच्छी अच्छी मूवीज जो है वो आप इसको देखा करें। सेकेंडली यू कैन ऑल्सो डू वॉट, कि एक और भी काम कर सकते हो कि आपका जितनी भी एनिमेशन में है ना मूवीज, एनिमेटेड मूवीज है, लाइक आपने पहले आपके बचपन में होगी, जैसे आपने लॉयन किंग शायद देखी हो, आपका इसके बाद आइस एज है, इस तरह की बहुत सारी दीज मूवीज आर ऑल्सो, you know why I recommend these movies. The reason is that they speak slow, you can understand them. Secondly, they speak philosophy. उसमें इतनी philosophy होती है कि आप इवन जंगल बुक है, आप उसको देख लें, वो ऐसी ऐसी उसमें डायलॉग्स हैं, यू आर सरप्राइज टू सी कि भाई ये हमें कोई मैसेज देना चाहते हैं जिंदगी के बारे में। तो व्हाट यू डू इज कि आपने अपने आप को थोड़ा सा एक हफ्ते में 2-3 दफा आप ऐसी कोई चीज देखें, स्कॉलर्स को सुने, टेड टॉक्स देख सुने, घर में कोई टाइम बना लें किसी अपने सिबलिंग के साथ, थोड़ी सी अंग्रेजी उनसे बोलें। यू कैन ऑल्सो फाइंड सम ऑफ द फ्रेंड्स जिसके साथ आप कहें जी फोन के ऊपर हम थोड़ी अंग्रेजी में बात किया करेंगे। तो आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे यू कांट डू दैट, तो आपको अच्छी कम्युनिकेशन नहीं आएगी। और आज का ये दौर है कि यू कांट डिनाई
द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। ऐसा ही है ना, आप कहीं भी दुनिया में चले जाओ, इफ यू कैन स्पीक इंग्लिश यू आर सेफ, you can make people understand you, right? You will find somebody, कोई ऐसे भी छोटे से मुल्क में भी चले जाओ जहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं इंग्लिश का होगा, but you will definitely find some people on airport जो अंग्रेजी बोल रहे हैं, ठीक है? तो ये आपको मैं एक बता रही हूँ, शुरू में बातें, बहुत सी बातें बताया करूंगी, मेरी आदत है along with teaching। मुझे लगता है कि sometimes I teach in a way कि I'm not teaching but it's kind of sermon, जैसे एक खुतबा दिया जा रहा होता है ना, इस तरह भी मैं कभी कभी करती हूँ। आपको बताऊंगी जरूर बातें। आई ऑलवेज लाइक दिस थिंग कि मेरी वजह से लोगों को जरूर कोई फायदा हो। आई कम्युनिकेट सर्टेन गुड थिंग्स टू यू सो दैट इट्स गोइंग टू चेंज लाइक अ पॉजिटिव चेंज इन स्टूडेंट्स। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं आज के जो टॉपिक में जो जो चीजें हमने कवर करनी है, हम इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन ही बस लेंगे। अभी आपको जो सामने स्लाइड है ना, इसकी मैं आपको पर्पस बताती हूँ। ओवर हियर यू सी, आप राइट कॉर्नर पे अगर देखो, एक पर्सन प्रेजेंटेशन दे रहा है, राइट? मे बी इट्स अ मीटिंग एंड द प्रेजेंटेशन इज अ पार्ट ऑफ द मीटिंग, और उसने कुछ बताना है, कंपनी हम कहाँ कर गए, प्रोग्रेस क्या हो गई है, हमारी मार्केटिंग क्या हुई है, कहाँ तक हम पहुंचे हैं। द पर्सन इज गिविंग इंस्ट्रक्शंस ऑन दैट एंड गाइडिंग। या हो सकता है जैसे कि आप उससे नीचे वाली देखें जहाँ पे एक तो टाइप हो रहा है ना, जो पे ईमेल हो रही है। ये मैं कहना चाह रही थी कि रिटन स्पोकन हर तरह से तुम्हें कम्युनिकेशन आनी चाहिए। और सबसे नीचे वाला बॉटम राइट साइड पे एक पर्सन खड़ा है और लोगों को राउंड टेबल है, उस पे वो कुछ बता रहा है। इट सीम्स लाइक टीम ब्रीफिंग, कि एक लीडर है टीम का, वो ब्रीफिंग उसको उनको दे रहा है कि हमारा जो है क्या काम है। या इन द मिडल ऑफ सम प्रोजेक्ट ही इज गोइंग टू बी आस्किंग पीपल टू बी देयर इन बोर्ड रूम में बैठो और मैं आके कुछ आपसे बात करता हूँ, तो यू कैन डू दैट। इस तरह एक दूसरे के, अगर दिन में कोई प्रॉब्लम है, लाइक प्रॉब्लम से मुराद ये है कि अगर कोई क्वेरीज है, कोई क्यूरोसिटी है किसी चीज के बारे में, या क्लियर नहीं है चीज, तो यू कैन जस्ट आस्क मेनी क्वेश्चंस ओवर देयर। इवन समटाइम्स वन पर्सन इज आस्किंग क्वेश्चन, अनदर फ्रॉम द ग्रुप इज रिस्पॉन्डिंग। आप उसी में से जवाब दे रहा होता है, तो आपका मसला हल हो जाता है। फिर आपने देखा है लेफ्ट पे आपको टॉप पे दो आदमी जो हैंडशेक हो रहा है, आप देख रहे हो कि दे आर maybe having a deal or they have like agreed on doing something। वो दो लोग बात सिर्फ कर रहे हैं। सबसे नीचे वाला जो पार्ट है उसमें देखिए एक पर्सन है, बहुत सारे लोग उसे इंटरव्यू कर रहे हैं। तो इसको इंटरव्यू, हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एक टॉपिक है जिसमें हम ये सारी चीजें कवर करेंगे। लेकिन आप देखो कि एवरीवेयर अ पर्सन हु इज टॉकिंग, अ पर्सन हु इज कम्युनिकेटिंग और बीइंग कम्युनिकेटेड, दूसरे उसको कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसको कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। उसके बगैर क्या होगा, वो नहीं कर सकेगा, राइट? और ये आपको बात हमने समझाई। और बच्चों, बिफोर आई वी कंटिन्यू, एक जरूरी बात ये है कि आप लोगों को क्लासेस जो है वो मिस नहीं करनी। आपकी क्लास होती है, आप पूरी अटेंड किया करो, वरना आपको टिप्स भी नहीं पता चलेंगे कि एमसीक्यूज किस तरह के आते हैं, ठीक है? तो ये बहुत जरूरी है क्लासेस रेगुलरली आपका अटेंड करना। इसके बाद जी मैंने आपको ये अभी तो स्लाइड्स इसलिए रखी हैं, ओवर हियर यू सी कि आप इस काइंड ऑफ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही है या एक मीटिंग हो रही है जिसमें ऑनलाइन लोग आपको मौजूद हैं, आप लोग यहाँ से बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि इतनी वर्सटाइल हो गई है हमारी लाइफ, हमारा आईटी या आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज इतनी एडवांस हो गई हैं कि अब हमें जाकर फेस टू फेस बात करने की भी जरूरत नहीं। व्हाट वी डू इज कि हम ऑनलाइन बात कर लेते हैं। इसी तरह आप देखिए, कोई पर्सन शायद इंस्ट्रक्शन दे रहा है नीचे वाली स्लाइड के ऊपर, और वो सारी टीम जहां जहां बैठी है वो आपको सुन रही है और आपको देख रही है, चाहे आप मुल्क से बाहर हो। तो आपको क्या चाहिए? दिस इज ऑल कम्युनिकेशन, और इसके क्या एस्पेक्ट्स हैं सारे हमने कवर करने हैं इस सब्जेक्ट के अंदर। फिर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम ये दिलेंगे अपने सिलेबस में, दैट इज टीम वर्क। आज का जो दौर है उसमें टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। टीम वर्क में हम ये देखते हैं कि एवरीबडी इज पुटिंग एनर्जी इनटू अचीविंग गोल्स, और जो गोल्स होते हैं ना वो कलेक्टिव गोल्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं। आप सारे मिलके एफर्ट कर रहे हो और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करोगे। हम इसको सिनर्जी भी कहते हैं। सिनर्जी जो होती है वो भी पूलिंग ऑफ एक्सपर्टीज है। आप सारे पूल करते हो, सारी अपनी अपनी नॉलेज को इकट्ठा करके इस्तेमाल करोगे, तो सिनर्जी जो है इसका कॉन्सेप्ट भी है।
उसके बाद आप ये भी देखते हैं कि हर तरह के ग्रुप्स हैं, और आज का जैसे दौर चल रहा है, हम आहिस्ता आहिस्ता स्विच कर रहे हैं फ्रॉम फॉर्मल टू इनफॉर्मल। इनफॉर्मल से बिल्कुल ये मुराद नहीं है कि यू स्टार्ट स्पीकिंग स्लैंग, आप बात करना शुरू कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने बहुत ही सिविलाइज तरीके से हम एक ग्रुप बना लेते हैं एंड वी स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। इस तरह टीम वर्क का दौर है, और आपने देखा है कि टीम को, इफ यू टेक इट एज एन एक्रोनिम, तो आप देखते हो लिखा है टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। तो इसके अलावा कुछ भी तुम इसमें से लफ्ज बना सकते हो, बट द थिंग इज दैट कि डेफिनेटली व्हेन पीपल आर वर्किंग टुगेदर, वो कहते हैं ना एक और एक जो है वो 11 होते हैं, बिल्कुल वही है। सिनर्जी का भी यही कॉन्सेप्ट है कि आप अकेले वो अचीव नहीं कर सकते। जब मिलकर हम अपनी स्किल्स इस्तेमाल करते हैं, अपना नॉलेज शेयर करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो हम क्या करते हैं, बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। इसके बाद आपको ये बताना है, यहाँ पे कम्युनिकेशन बैरियर्स हम देखेंगे। यहाँ पे देखो कुछ तस्वीरें फनी भी लग रही हैं, जिसमें नीचे टॉप पर एक लड़का ऊपर बैठा हुआ है, और कुछ लोग जो है वो बहुत ही गुस्से में खड़े हैं, एक दूसरे को ब्लेम गेम शुरू हुई भी है। होता क्या है, व्हेन यू आर टॉकिंग टू पीपल एंड देयर आर मेनी मेनी टाइप ऑफ पीपल ओवर देयर, डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड से आते हैं, तो मसला क्या होता है, उनका मसला ये हो जाता है कि उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, उनके अंदर कॉन्ट्रडिक्शन आ जाते हैं, और वो कॉम्प्रोमाइज करने को राजी नहीं होते। तो इसलिए हम ये चीज भी देखेंगे कि किस तरह से
या कोई साइन है या आपका कोई बिहेवियर का साइन है. फॉर इंस्टेंस अ पर्सन इज गोइंग समवेयर और वो आपको कहता है कि जी मैं जा रहा हूँ, तो मैं आई एम गोइंग टू बी गोइंग हेड ऑफिस जा रहा हूँ, तो मैंने रिपोर्ट्स कैरी करनी है, तो आपको चाह रहे हैं वहां से, आपने कहा जी फला चीज साथ लेते आना, या इशारे से कह दो, आपने अपनी फिंगर से दो का इशारा किया कि दो ले आना, ठीक है. तो हमने साइन इस्तेमाल किया, हम बोले नहीं, तो इस तरह हमने फिर भी कम्युनिकेट कर लिया. इसी तरह नॉन वर्बल साइन या कुछ भी होता है, दिस इज अ सिंबल और साइन, व्हाटएवर यू यूज आप उसको कर लोगे. अगर आप और आपका दोस्त दूसरे पुराने हैं, आप कोड वर्ड भी यूज कर सकते हो अब दूसरे के लिए, तो तब भी आपको समझ आ जाएगी क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है. इसके बाद नीचे रॉबर्ट एंडरसन की जो लिखी हुई है वो है कम्युनिकेशन इज इंटरचेंज ऑफ थॉट्स, ओपिनियंस और इंफॉर्मेशन बाय स्पीच, राइटिंग और साइंस. एक ही बात है, बोलकर, लिखकर या नॉन वर्बल तरीकों से आपने अपनी ओपिनियन को लोगों तक पहुंचाना है, अपनी थॉट्स को पहुंचाना है, लोगों की ओपिनियन लेनी है, लोगों की थॉट्स लेनी है. हम कितना ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं और लोग कितना हमें इन्फ्लुएंस करते हैं. फॉर इंस्टेंस अब आप सारे लोग जो हैं, आप यहाँ पर कम्युनिकेशन की क्लास पढ़े हो और आपने एडमिशन लिया है, ठीक है, सीएमए के लिए, आपको किसी ने तो कम्युनिकेट किया है ना कि यू शुड डू दिस एंड यू आर कन्विंस्ड नाउ एंड यू आर डूइंग इट, राइट. सो हम जरूर लोगों को अपनी थॉट्स और ओपिनियंस पहुंचाते हैं एंड लोग हमें पहुंचाते हैं, तो वी डू इट और दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. इसके बाद लुइस एलन, जो कि आप देखिएगा उनकी बुक्स भी हैं, उन्होंने लिखा है कम्युनिकेशन इज द सम ऑफ ऑल थिंग्स. सम मीन टोटल of all things one person does when he wants to create understanding in the mind of another. जब आप किसी और के दिमाग में कुछ क्रिएट करना चाहते हो, कोई अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहते हो, तो क्या होता है कि आपने जो कुछ भी किया, जो कुछ इशारा किया, बोला, आवाज में स्ट्रेस है तुम्हारी, आवाज में गुस्सा है अगर, या बहुत ही ज्यादा खामोश रह गए हो, वट एवर यू डू, सारा टोटल जो है वो क्या है, वो आप दूसरे के माइंड में एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं. आप डिस्कशन के दौरान आपने सवाल पूछे, अ पर्सन इज नॉट रिप्लाइंग टू वन क्वेश्चन, तो इसका मतलब है या तो उसको क्वेश्चन समझ नहीं आया, या वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझता कि आपको जवाब दे, या आपका क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ द वे आपने क्वेश्चन कर लिया था. तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपने वहां से गेट कर ली. नेक्स्ट इसी में लिखा है इट्स अ ब्रिज ऑफ मीनिंग्स, यानी आपने इट्स अ ब्रिज ऑफ मीनिंग के मीनिंग को आपने ब्रिज कर दिया, आपने कवर किया. इट इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ टेलिंग, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग. आप बताते हो, सुनते हो और फिर अंडरस्टैंड करते हो, ये सारा कुछ जो है वो आप कर रहे होते हो. इसके बाद केथ डेविस है, ये एक स्पीकर है मोटिवेशनल, उन्होंने कहा डिफाइंड कम्युनिकेशन एज अ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. इट्स अ वे ऑफ रीचिंग अदर्स विद फैक्ट्स, आइडियाज, थॉट्स एंड वैल्यूज. रीचिंग अदर्स का मतलब है कि लोगों तक अपनी बात कम्युनिकेट करना, लोगों को कन्विंस करना, किस तरह, फैक्ट्स बताकर, अपने आइडियाज देकर, थॉट्स देकर, और वैल्यूज को कम्युनिकेट करना. देखो वैल्यूज एक बड़ी गहरी बात है, इस पे हम इंशाल्लाह बात करेंगे, लेकिन वैल्यूज आपकी क्या है, आपके प्रिंसिपल्स हैं, आप जिस पे समझते हैं कि हमें करना चाहिए, एंड देर आर सम स्टैंडर्ड्स, उनको वैल्यूज कहते हैं, वो आपने पास ऑन करनी होती है. आप लोगों को किस तरह करेंगे, ये सारा एक एक व्यू दिया मैंने आपको कम्युनिकेशन का. और जो मैं आपको नोट्स दूंगी उसमें इसकी डेफिनेशंस जो होंगी वो आपने याद करनी होंगी. अभी आप स्लाइड से भी जरूर पढ़ लेना, मैं आपके साथ स्लाइड शेयर कर लूंगी. इट वुड टेक आई थिंक अ डे और टू लग जाएंगे हमें सेटल होने में, तो फिर आपको जो चीजें मिस भी की होंगी वो भी आपको मैं दे दूंगी, आप परेशान मत होइएगा. आपने ये जो स्लाइड है इसको एक नजर जरा देखिए और सोचिए कि क्या हो रहा है, फिर मैं बताऊंगी कि मैंने ये स्लाइड पे क्या रखा है और क्यों रखा है. जी, आपने देखा है कि गाड़ी एक बनती है, सबसे पहले कोई पर्सन उसका एक स्केच बनाता है. कितनी सिंपल सी बात लगती है, अ पर्सन इज जस्ट मेकिंग अ स्केच. उसका डिजाइन, उसका जो उसकी सारी इंजीनियरिंग उसके पास है और उसके ऊपर बेस करके वो बनाता है, कितनी एरोडायनामिक होगी,
या इसके कितने जो व्हील ड्राइव है, किस तरह के इसका है, गियर्स कैसे हैं, या ये इसके पावर विंडोज हैं, व्हाटएवर, फ्यूल इकोनॉमी, सारा कुछ करके वो एक बनाता है और एक पूरी टीम उसको डिसाइड करवाती है। फिर उसके ऊपर एक प्रॉप बनता है, एक मॉडल बनता है, फिर उसको वो ट्राई करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, उसके सारे पार्ट्स असेंबल होते हैं और फिर वो मार्केट में आती है और फिर बाय करते हैं और चलाते हैं। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, ये सारा कुछ जो कम्युनिकेशन के थ्रू आप तक पहुंचता है, पीपल आर कम्युनिकेटिंग देयर आइडियाज, व्हाट द वर्क दे डू। एक छोटी सी कंपनी से लेकर से, एक कंपनी छोटी सी है, वो एक माचिस बनाती है। अब आप कहेंगे माचिस, एक क्या इसमें इतनी रॉकेट साइंस है कि ये एक माचिस बनती है और छोटे छोटे स्टिक्स हैं, आगे वो बर्निंग का उसके अंदर लगाकर मटेरियल और साथ उसको इग्नाइट करने के लिए और डब्बों में डाल देते हैं, डब्बियों में। वो एक हम्बल सी प्रोडक्शन है। और आप इसके बाद यहाँ पे देखो, कंप्यूटर्स पे देखो, इसके अलावा जो जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आपको प्रोडक्ट नहीं देती, सर्विसेज दे रही हैं आपको, राइट? आपको सर्विसेज दे रही हैं, जैसे होटल है सर्विसेज देता है आपको, हॉस्पिटल सर्विसेज देते हैं आपको, लॉयर्स आपको सर्विस देते हैं, वो आपको प्रोडक्ट नहीं देते। तो इस तरह आप इंस्टीट्यूट्स हैं, वो जैसे आप पढ़ रहे हो तो हम आपको सर्विस दे रहे हैं, हमको प्रोडक्ट थोड़ी दे रहे हैं। तो ये सारे जो लोग हैं, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करके तो फिर ही हम पहुंचते हैं। और एक ऑर्गेनाइजेशन तभी बहुत एक्सेल कर जाती है जब उसके हर पर्सन जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ठीक है, और पास ऑन करता है उस चीज को। देन यू मेक इट लाइक कलेक्टिव गोल को आप फॉलो करते हो, उसको चेस करते हो। तो ये मैं आपको बताना चाह रही थी। इसके बाद हमने हेरल्ड जेनिस है, इसको मैंने, ये मैं आपका सिर्फ जो है बच्चों, दिस इज ओरिएंटेशन सेशन, आप परेशान मत होना। जो पढ़ना है पेपर के लिए वो मैं आपको बता दूंगी। अभी आपको मैं सारा एक व्यू दे रही हूँ कि हमने क्या क्या कवर करना है, और असल में कम्युनिकेशन जो है उसकी जनरली आप इंपॉर्टेंस जो है वो क्या है। हेरल्ड जेनिस है, वो असल में ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी पर लिखते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, क्योंकि हमारा जो कम्युनिकेशन के बाद जो अगला टॉपिक होगा, दैट वुड बी ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी क्या चीज है? इसका मतलब ये है कि पीपल हु आर वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन, देयर साइकोलॉजी, हाउ वुड दे बी फील लाइक वर्किंग, वो कितने ज्यादा, आप समझ सकते हैं, मोटिवेटेड हैं, उनका मोरल कितना अप है, और क्या क्या चीजें उन्हें स्ट्रेस देती हैं, क्या चीजें जो है वो उनको मोटिवेट करती हैं। ये सारा कुछ जो है ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट इस चीज को देखते हैं। और अगर ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट वर्किंग ऑन द वेल बीइंग ऑफ द वर्कर्स, तो वो कैसे काम करेगी? अगर तुम्हारा वर्कर खुश नहीं है और वो इतना डीमोटिवेटेड है और उसका मोरल डाउन है, वो कैसे काम करेगा? आर्मी है वो किस पे चलती है पता है आपको? मोरल पे। आप एक्सरसाइज पे गए हैं, आपका कर्नल साहब आपके साथ हैं, आप कप्तान हैं, तो वो सारे लड़के खड़े हैं, वो पूछता है हाउ इज योर मोरल यंग मैन, वो कहता है फाइन सर, ठीक है, और वो कहता है जंप, तो वो जंप लगा देता है। तो अगर मोरल अप नहीं होगा लोगों का, दे वॉन्ट वर्क, ठीक है। और आप देखेंगे, मैं आपको जिक्र भी करूंगी, ना भी सिलेबस में हुआ तो कुछ थेरीज है हमारे पास, जैसे थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई और थ्योरी जी कहते हैं। ये जो थेरीज है क्या है, ये बताती हैं कि लोग काम करना चाहते हैं कि नहीं, क्या उन्हें पुश करना पड़ेगा, या कुछ ऐसे लोग भी हैं जो डंडे के जोर पे काम करते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। तो जब तक उनको सही तौर पर कहते हैं एक डंडा नहीं पड़ेगा, दे वॉन्ट वर्क, इट मीन्स दे आर सपोज टू बी, क्या, पुश चाहिए उनको, वरना नहीं काम करेंगे। और आमतौर पे देखा जाएगा, आप देखोगे कि आपने भी एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत देखा होगा अपने इर्द गिर्द, जो भी कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में पीपल आर नॉट गिवन बेटर फैसिलिटीज और उनका पे जो है वो बहुत कम होती है, वो मोटिवेटेड नहीं होते काम के लिए। भला क्यों? बिकॉज उससे उनका लाइफ स्टैंडर्ड जो है, लाइफ स्टाइल है, वो नहीं बन पाता, ठीक है। तो ये मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी की बात बताने लगी थी। सेकेंड लाइन में आ जाइए। द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस इज अ वर्ल्ड ऑफ एक्शन, ये इसने कहा है, हेरल्ड जेनिस ने। उसने कहा जो दुनिया है बिजनेस की, वो एक्शन की दुनिया है कि नहीं? आपने
एड चलाई टीवी पे, और जिसके पास ज्यादा पैसा है वो बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी उठाएगा और क्या करेगा, उसका जो उसका जो ब्रांड एम्बेसडर होगा वो इतना महंगा होगा, राइट? और ही इज इनडायरेक्टली गिविंग मैसेज टू हिज कंपेटिटर। वो जो कंपनी है अपने कंपेटिटर को मैसेज दे रही है कि हम ये अफोर्ड कर सकते हैं। तुम क्या समझते हो? ठीक है, हमने मेसी को एज अ ब्रांड एम्बेसडर लिया है, तो व्हाट डू यू थिंक दैट कंपनी इज? आप अंदाजा कर सकते हैं, ठीक है ना? तो या चलो मेसी को नहीं जानते तो कोई और कर लो, चलो जैसे तुम जानते हो। तो आपने क्या किया है, आपने बताया है लोगों को। तो दिस इज अ वर्ल्ड ऑफ एक्शन। प्रोडक्ट्स आर डिजाइंड, अभी मैंने आपको पीछे तस्वीर दिखाई, प्रोडक्ट डिजाइन हो रही है, मेड बनती हैं, सोल्ड बेची जाती है, पीपल आर हायर्ड, लोगों को हायर करते हो, सर्विसेज रेंडर्ड, और सर्विसेज देते हैं वो लोग और तुम सर्विसेज लोगों को देते हो, पॉलिसीज आर डिवाइज्ड, नई पॉलिसीज बनती हैं, इम्प्लीमेंटेड और उसको लागू किया जाता है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, जॉब्स आर लर्नड, फिर हम जॉब सीखते हैं, परफॉर्म करते हैं, yet there is no practical way in which any of these events can take place without communication। ये सारा कुछ जो है किसी भी, ये तुम जो मैंने अल्फाज हैरल्ड जेनिस के लिखे हैं इसको चेंज कर दो, तुम अपने अल्फाज बना लो और तुम देखो कि किसी एक जगह चले जाओ, यू विजिट अ बैंक, यू विजिट अ फैक्ट्री, यू विजिट अ करियाना स्टोर इवन, तो क्या है, अगर वो पूरी तौर पे कम्युनिकेटेड नहीं है, एक स्टोर है उसमें एक वर्कर उसने रखा है, वो नहीं बताता कि जी कौन सी शेल्फ पे चीजें कम हो गई हैं, खत्म हो गई हैं या एक्सपायर्ड पड़ी हैं, तो क्या होगा, कोलैप्स हो जाएगा ना। पीपल वॉन्ट कम टू बाय फ्रॉम देयर, वो लोग नहीं आएंगे, नहीं खरीदेंगे, ट्रस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब जैसे हम जाते हैं जिन स्टोर्स का हमें पता होता है कि दे कैन, हमें बहुत दफा देख लिया है, दे आर नॉट प्लेसिंग एनीथिंग विच इज एक्सपायर्ड या एक्सपायरी के करीब मरने वाली हुई होती है, तो दे आर बाइंग इट एक्चुअली, ठीक है ना। ऐसे होता है ना, बाय वन गेट वन फ्री। एक तो वो होता है ना जो कि कपड़े खरीद लो, वो तो ठीक है, वो तो खैर है, कोई बात नहीं, आप बाय वन गेट वन फ्री कर लो। बट व्हेन यू आर बाइंग समथिंग लाइक, आपको जी सीरियल लगे हुए हैं ऑफ पे, या आपकी जो कोई और चीज खाने वाली स्टॉक पे लगी हुई है ऑफ पे, या आप समझ लें कॉफी पड़ी है, स्टॉक पड़ा हुआ है और वो ऑफ पे लगा हुआ है, तो जरा गौर से पढ़ लेना कि क्या है, एक्सपायरी करीब है। तो ये वाली चीजें जो हैं क्या है, एवरीथिंग इज कम्युनिकेटेड। अगर कम्युनिकेट नहीं होगी तो हम बिल्कुल खराब हो जाएंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा हमें, ठीक है। तो दिस आई वॉन्ट टू टेल यू। इसके बाद जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप समझ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, हम ये पढ़ेंगे और आइडिया थोड़ा सा लेंगे हम कि कम्युनिकेशन इज एवर प्रेजेंट फीचर ऑफ बोथ कमर्शियल एंड पर्सनल लाइफ। ये बात गौर से समझें। एवर प्रेजेंट फीचर का मतलब है हमेशा मौजूद रहने वाला एक कैरेक्टरिस्टिक, एक क्वालिटी, किसकी, कमर्शियल यानी बिजनेस की, एंड पर्सनल और घर की। और मैं बिलीव करती हूँ कि आपकी जो घर की लाइफ होती है, वेदर यू आर मेल और फीमेल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप अपना जहन, खूबसूरत जहन लेकर ऑफिस जाते हो या झगड़ों वाला जहन ऑफिस लेके जाते हो, अगर आपके दिमाग में पहले से झगड़े चल रहे हैं, हाउ वुड यू परफॉर्म? नहीं कर पाओगे ना। और ये भी मैं आपको बता दूं, एक टेड टॉक है, जैसे मैंने भी आपको शुरू में कहा है, टेड टॉक सुना करो। एक टेड टॉक है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपके साथ लिंक्स भी शेयर कर दूंगी, जब हम व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाते हैं आई विल बी शेयरिंग विद यू सम ऑफ द वेरी गुड टेड टॉक्स। अब ये जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ ना, ये ऑक्सफोर्ड की एक रिसर्च है और उन्होंने 90 ईयर्स से वो रिसर्च कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि बंदा जो है वो 200 साल का है अगर 90 ईयर्स रिसर्च कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं। जिन्होंने 90 इयर्स बैक शुरू की वो हर नए लोगों को पास ऑन करते गए और वो रिसर्च अभी भी चल रही है, लाइव रिसर्च। उस रिसर्च में उन्होंने सबसे पहले उन्होंने सब्जेक्ट्स उठाए थे। सब्जेक्ट समझते हो क्या क्या होते हैं? जिन पर एक्सपेरिमेंट किया जाए, ठीक है। चाहे वो एक माइस का, एक चूहे हैं उन पे किया है, पिजन पे किया है तुमने, मंकीज पे किया है, इंसानों पे किया है, वो आपके सब्जेक्ट्स हैं। और पर्टिकुलरली हम जो इंसान है उनको सब्जेक्ट कहेंगे। उन्होंने जो सब्जेक्ट्स उठाए थे जिन पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट डजंट मीन कि उन्होंने उनको
पिंजरों में बंद कर दिया, इट मीन्स दैट दे स्टार्टेड टेकिंग देयर लाइफ हिस्ट्री रिकॉर्ड, और फिर वो बूढ़े होते गए। और जब मैंने वो टेड टॉक सुनी है और देखी है, उसमें मैंने उसको उसका फॉलो भी उसको किया, और मैंने जाके देखा कि उनमें से बहुत सारे लोग मर चुके हैं जिन पे रिसर्च स्टार्ट हुई थी, बहुत सारे लोग। और ये भी देखा गया कि जो लोग हेल्दी थे ना, रहे और लंबी उम्र पाई, उनकी पर्सनल लाइफ जो थी वो बहुत हैप्पी थी। दे वर हैविंग हैप्पी रिलेशंस, दे वर हैविंग हैप्पी पीपल अराउंड, जो उनके आप समझ लें स्पाउस है, या उनके जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं, बच्चे हैं, उनके सिबलिंग्स हैं। तो क्या है, हैप्पी बॉडी, हैप्पी माइंड, और हेल्दी रहे। तो इस तरह से आप क्या करते हैं कि आपकी जो है हेल्थ रहती है। तो हमें ख्याल करना है, वी आर सपोज टू बी हैप्पी एवरीवेयर। हमें अपने आप से बेहतरी को क्या करना है, इर्द गिर्द प्रोपेगेट करना है। वी हैव टू इम्पार्ट गुडनेस इनटू नेचर, इनटू सराउंडिंग। तो उसने कहा है कि दोनों में मौजूद है, वेदर इनिशिएटेड कॉन्शियसली, चाहे तुम कम्युनिकेशन जानबूझ के कर रहे हो, कॉन्शियसली मीन तुम जानते हो तुम कर रहे हो, मैं बोल रही हूँ, आई नो, राइट, आई टेक केयर ऑफ माई वर्ड्स, मैं कोई ऐसे वर्ड्स ना या मैं बोलूं, या मैं कहीं अपने टॉपिक से दूर ना चली जाऊं, आई हैव टू बी बैक, वरना बच्चे कहेंगे ये क्या हो रहा है, हम क्या पढ़ रहे हैं और पढ़ाया क्या जा रहा है, राइट। तो आप कॉन्शियसली, जैसे उसने एग्जांपल दी है, रिपोर्ट या ईमेल लिखते हो, तो मैं आई एम वेरी मच कॉन्शियस, आई एम राइटिंग, आई एम वेरी मच कॉन्शियस, आई एम डिलीवरिंग अ स्पीच। और सबकॉन्शियसली क्या होता है, जो अंदर से हो जाता है तुम्हें पता नहीं चलता, नॉन वर्बल तरीकों से, बॉडी लैंग्वेज के तरीकों से। एक बंदे ने आपको कहा कि जी ठीक है, आई विल बी वर्किंग विद यू, आई एम द पार्ट ऑफ योर टीम, आपने कह दिया, ठीक है, लेकिन हाफ हार्टेडली देखो तो सही, कितना ज्यादा डीमोटिवेटेड है, नहीं काम करना चाहता, मत कराओ, इसे मत रखो, कोई और बंदा ढूंढो जो उतनी ही एनर्जी से तुम्हारे साथ काम कर सके, ठीक है। तो ये चीज हम देखते हैं। अब एक जिंदगी के लिए भी और अपनी किताब के लिए भी बात समझ लो, अपने सब्जेक्ट के लिए, हम सब जो लोग हैं ना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये एक आइसबर्ग की एग्जांपल है। आइसबर्ग की एग्जांपल, जितने लोग भी राइटर्स हैं या स्पीकर्स हैं, दे यूज दिस एग्जांपल अ लॉट मेनी टाइम्स दे यूज इट। व्हाई? एक तो बेहतरीन बात यह है कि आपका कॉन्शियस माइंड जो कि नजर आ रहा है लोगों को, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, वो पानी के बाहर है। और मजे की बात बता दूं, जो आइसबर्ग होता है ना, वो 10% दिखता है और 90% पानी के अंदर है। आइसबर्ग क्या है? अगर टाइटैनिक देखी है तो तुम्हें अच्छी तरह पता होगा, या इसके अलावा कितनी दफा आइसबर्ग जो हैं, दे दे बिकेम द कॉज ऑफ शिपरेक, ठीक है, जहाज तबाह होते हुए, ऊपर से आपको पानी
इंग्रेडिएंट्स आर रिक्वायर्ड, कौन कौन होगा तो कम्युनिकेशन होगी। सबसे पहली बात यह है कि आपको एक स्पीकर चाहिए, एक लिसनर चाहिए। अगर स्पीकर नहीं चाहिए तो फिर एक राइटर चाहिए और एक रीडर चाहिए, और कनेक्टिविटी हो जाएगी। उसके नीचे आप ये देखिए कि आप बाज़-औक़ात आप किसी चीज को एनकोड करते हो। अभी हम पढ़ेंगे एनकोडिंग। एनकोड करते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने आपसे कहा ट्री, आपके दिमाग में फौरन ट्री आ गया, जैसे कि पिक्चर में नजर आ रहा है। लेकिन बड़े मजे की बात यह है कि मेरी कोडिंग बहुत गलत है, एनकोडिंग बहुत गलत है। मैं आपको से कोई खास ट्री की बात करना चाह रही हूँ। से मैं कहती हूँ मैंगो ट्री या बनाना ट्री। अब आप देख लें, या जो खजूर का होता है, डेट्स का ट्री, कितने फर्क होते हैं। तो मुझे, अगर मैं स्पेसिफिकली उनके नाम ले लूंगी, ठीक है, अगर मैं उनके नाम ले लूंगी तो तुम क्लियरली वही सोचोगे या तुम ड्रॉ करना शुरू कर दोगे जो मैंने बोला है। तो इसका मतलब है माय एनकोडिंग द कोड वर्ड्स और द सिंबल्स और द वर्ड आई एम यूजिंग। यहाँ कोड वर्ड का मतलब ये नहीं है कि मैंने अल्फा ब्रावो चार्ली बोलना है, इसका बिल्कुल मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि जो तुम्हें मैंने चीज कम्युनिकेट करनी थी उसके लिए स्पेसिफिक वर्ड का इस्तेमाल करना, दैट इज कोड फॉर मी। इट कैन बी डिफरेंट कोड फॉर यू। तो आपने एनकोडिंग की, कोडिफाई किया, तुमने डिकोडिंग की और डिकोडिफाई किया, तुम डिकोडिंग करोगे। जैसे आपने देखा ये दो लोग हैं, एक जूनियर एक सीनियर है, वो अपनी शायद रिपोर्ट चेक करा रहा है और वो देख रहा है उसको, वो उसको समझा रहा है कि मैंने कैसी रिपोर्ट दी है। लेकिन जो बिजनेस होता है ना, ऑफिस, उसमें ऐसी लैंग्वेज आपने यूज करनी है कि अ पर्सन इफ डजंट सी यू, डजंट मीट यू, या वो कभी आपको मिल भी नहीं सकता, आपने ईमेल कर दी है, किसी और मुल्क में मेल गई है, तो क्या होगा, वो आपकी बात को समझ सके। तो आपकी लैंग्वेज जो है आपकी जिम्मेदारी है। दिस इज योर लायबिलिटी, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स एन ऑब्लिगेटरी पार्ट ऑन योर लाइक टाइप कि यू आर डूइंग व्हाट, कि ऑब्लिगेशन है कि आपने सही एनकोडिंग करनी। मैं इस प्रोसेस को आपको डिफरेंट तरह से दिखाऊंगी। अभी जो आपको नजर आ रहा है ना, 5 चीजें जो आपको पर्पल से कलर में, वो पांचों के पांचों जो हैं, दीज आर कंपोनेंट्स। ठीक हो गया। और आपको मैं एमसीक्यूज शेयर करूंगी, आपका मसला हल हो जाएगा कि कौन कौन से नाम है कंपोनेंट्स के। अभी आहिस्ता आहिस्ता ये जो कुछ मैं बता रही हूँ अपनी मेमोरी में सिंक होने दो, उसको जाने दो, आहिस्ता इसको रिटेन करो। एकदम से तुम्हें ना मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोगों को अभी सब कुछ आ जाएगा, और ना ही खुद से इतना एक्सपेक्ट करो कि तुम्हें सब कुछ आ जाएगा। हमें आहिस्ता आहिस्ता बातें समझ में आएंगी। सेंडर जो है एक मैसेज बनाएगा, मैसेज जब वो बनाएगा तो डेफिनेटली एनकोडिंग करेगा और किसी चैनल को सिलेक्ट करेगा और रिसीवर उसको रिसीव कर लेगा। अब ये चैनल की बात बहुत तरह से पढ़ेंगे। सेंडर जो है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स नीचे लिखा है, उसका एटीट्यूड, एटीट्यूड एक बहुत गहरी टर्म है। एटीट्यूड इज एवरीथिंग यू डू, एटीट्यूड इज योर सीरियसनेस और नॉट टेकिंग थिंग्स सीरियसली इज ऑल योर एटीट्यूड। तो एटीट्यूड तुम्हारा, तुम्हारा एक्सपीरियंस, तुम्हारा कल्चर, तुम्हारा कल्चर क्या है, नॉट ओनली योर होम, not only your surrounding, the area where you live, but the place where you work, the department in which you are working. Everywhere you find culture. ना सिर्फ कल्चर बल्कि सब कल्चर भी होता है। अब एक पंजाब ले लो, उसका एक कल्चर है, उसके अंदर डिफरेंट सिटीज के अपनी अपनी कल्चर्स है, यू कॉल इट सब कल्चर। ठीक हो गया। लाहौर को ले लो, ओनली जस्ट लाहौर और जस्ट कराची, कुछ एरियाज हैं इस्लामाबाद, आपके कुछ एरियाज हैं पॉश एरियाज हैं, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे जो आपके लिए मिडिल क्लास के ज्यादा लोग हैं, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इस तरह हर एक का कल्चर होगा। तो इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर्स हैं, हर डिपार्टमेंट का अपना एक सब कल्चर है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट का अपना कल्चर है, 9 बजे आएंगे 5 बजे बंद कर देंगे चले जाएंगे। प्रोडक्शन वालों का अपना कल्चर, स्टे एंड स्टे एंड स्टे, इस पे एतराज भी नहीं करेगा। और अगर प्रोडक्शन वाले जो हैं, इफ दे आर स्टेइंग बैक लेट,
काफी देर काम किया तो प्रोडक्शन का हेड कहेगा कल आप 9 बजे नहीं आएंगे, कल हम 12 बजे काम शुरू करेंगे, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक हो गया। तो ये कल्चर है। सेल्फ कॉन्सेप्ट मीन मुझे अपना कॉन्सेप्ट है, सेल्फ अवेयरनेस मुझे खुद का पता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं मुझे बनाती हैं सेंटर को। मैंने मैसेज बनाया, उसको स्ट्रक्चर किया, उसके अंदर मटेरियल डाला, उसको मैंने कैसे ट्रीट किया, कैसे मैंने एनकोड किया, मैंने उसको चैनल को या तो मैंने बोल के बताया, किसी ने, बाकी ये जो 5 ये छोड़ सकते हैं आप, सिर्फ समझ ले थोड़ा सा तस्वीर से। रिसीवर की भी तमाम वो चीजें जो सेंडर की थी उस मैसेज को समझने में हेल्प करेंगी और फिर वो फीडबैक देगा। फीडबैक सेंडर रिसीवर को जोड़ के रखता है। कनेक्टिविटी, अगर आपको मेरी बात समझ में आई तो अगली बात करूंगी, अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आई तो ब्रेक डाउन आ जाएगा। योर फीडबैक इज ईदर नेगेटिव और देयर इज नो फीडबैक, जीरो, तुमने कुछ भी नहीं कहा, तो बात खत्म हो गई। एक ये हमने डायग्राम देखी। इसके बाद हम देखेंगे अब आज का जो दौर है। आज के दौर में तुम क्या कर रहे हो? एक सेंडर है, उसने मीडियम इंटरनेट लिया, अपना चैनल इंटरनेट, उसने स्मार्टफोन के जरिए दूसरे रिसीवर को एक मैसेज दिया, उधर से मैसेज गया और उधर से मैसेज आया। मैसेज उसने पढ़ा और मैसेज के अंदर आपको चैट नजर आ रही है। उसने कहा जी मूवी स्टार्ट एट 9, कैन यू ड्राइव अस, हमें ले जाओगे? उसने कहा या वी देयर बाय 8:30, हाँ मैं ले जाऊंगा, ले जाऊंगी, मैं 8 8:30 बजे वहां पहुंच जाऊंगी, जो पहुंच जाऊंगा, ताकि तुम्हें टाइम पे पहुंचा सकूं। तो आपको फीडबैक आ गया। तो ये सारा कुछ क्या है? ये भी कंपोनेंट्स हैं या उसे एलिमेंट्स हैं कम्युनिकेशन के। अच्छा, ये भी हमें बात समझ में आ गई। फिर हमने देखा एक और चीज, एक पर्सन है, कुछ कहना चाह रहा है, वो मैसेंजर है या सेंडर है, वो कोडिंग करता है, मैसेज को भेजता है, उसके लिए चैनल इस्तेमाल करता है, स्पीक करके, टेलीफोन के जरिए, सामने आमने बैठकर, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, जूम मीटिंग के जरिए, वेबिनार के जरिए, राइटिंग लिखता है। जैसे आपको स्लाइड नजर आ रही है, यू आर जस्ट रीडिंग फ्रॉम द, कर रहे हो, मैंने लिखा था तुमने पढ़ लिया, या मैं तुम्हें खत लिखती हूँ तो यू रीड दैट, आई राइट योर रिपोर्ट सेंड यू, यू रीड दैट रिपोर्ट। या कुछ ग्राफिक्स का इस्तेमाल मैंने किया, मैंने चार्ट वगैरह बना दिए, ग्राफ बना दिए, टेबल्स बना दिए, या मैंने कोई वीडियो इसमें डाली। तो सारा कुछ मैंने सोचा कि ये सारे चैनल मुझे चाहिए, एक चाहिए, दो चाहिए, ये मैसेज चला गया और डिकोडिंग हुई। रेसिपिएंट रिसीवर अंडरस्टैंड करेगा और फिर वो उस मैसेज से कुछ ना कुछ, उसका एक इनपुट है, उसका आउटपुट है कि मैसेज गया कि नहीं गया। ये चीज हमने देखनी है। और यहाँ पे नीचे लिखा है एटलीस्ट सम कोड इन कॉमन, यानी हम इनमें से कोई भी जो है कॉमन होते हैं जिसको हम यानी इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम चैनल्स के जो नाम है ना, उसके मीडिया कंपोनेंट्स के, वो हमें याद करने होंगे। अब हम यहाँ पर एक और तरह से कम्युनिकेशन प्रोसेस को देखेंगे, लेकिन जो आपको नोट्स में दूंगी ना वो आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से। मैं कहना ये चाहती हूँ, आपका जो पेपर है वो एक, इसकी कम्युनिकेशन टॉपिक की लिमिट नहीं है। इतनी ज्यादा बुक्स हैं, इतने ज्यादा ऑथर्स हैं, लेकिन हम उतना पढ़ेंगे जितना आपको पेपर में आएगा। और हमारा, चूंकि आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, आई वर्क एज एन एग्जामिनर एज वेल विद डिफरेंट बोर्ड्स, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है पेपर कैसे बनता है। तो मैं आपके साथ हर चीज शेयर कर लूंगी, यू डोंट वरी अबाउट इट। आपका सिर्फ काम है कि आप पढ़ते रहेंगे, ठीक है, आप उसको समझते रहेंगे। अब मैंने एक और तरीके से आपको कम्युनिकेशन को दिखाया। मैंने कहा जी मैसेज, सेंडर ने मैसेज बनाया, ब्लू वाले कलर से लेफ्ट साइड से देखते हैं, सेंडर ने मैसेज बनाया यानी एनकोडिंग की, या उसके दिमाग में आया उसने एनकोडिंग की, कोई मीडियम या चैनल इस्तेमाल किया, रिसीवर डिकोड किया, रिसीवर ने उसका मतलब निकाला, उसने मैसेज बनाया, उसने उस मैसेज को एनकोड किया, फीडबैक, और वो मीडियम के थ्रू तुम्हारे पास पहुंच गया। इस सारी चीज को सिखाने का मतलब पता क्या था? आई हैव एड समथिंग ओवर देयर व्हिच इज नॉइज एलिमेंट। नॉइज है। अब ये नॉइज क्या है? ये नॉइज जो है वो क्या करेगा? हम वी आर लेफ्ट विद फ्यू मिनट्स, तो मैं आपको बस यहाँ पर ही खत्म करूंगी। और उसके बाद जो है बच्चों, आप में से इफ मैनेजर्स आर लिसनिंग टू मी, दे कैन आल्सो फैसिलिटेट इसके बाद कि वो व्हाट्सएप जो है
उसका कोई जो पहले जिस तरह आपने क्लास में किया होगा, यू कैन शेयर विद मी कि आप जो है वो ग्रुप्स बनाएंगी, ठीक है? तो यू जस्ट कैन टेल मी, आपको वो अनम्यूट कर सकते हैं और यू कैन आई मीन पुट योर मैसेज समवेयर, चैट कर सकते हो, तो वो आप मुझे बताएंगे। तो ये लास्ट चीज बस देख लो कि इसमें नॉइज एलिमेंट आ गया है, मैं आपको कल डिटेल में बताऊंगी, ये एज अ बैरियर है। इससे आगे हम चलेंगे और आपको मैं सारा जो है आपको गाइड करूंगी इसके ऊपर। अभी तक सिर्फ और सिर्फ आपने कम्युनिकेशन क्या होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम कम्युनिकेट किस तरह करते हैं, हम कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली बातें कम्युनिकेट करते हैं, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, हर बंदे की कैपेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन जो होती है, स्किल्स, दूसरे बंदे की भी स्किल्स कैपेसिटी होती है, उसके साथ हम कम्युनिकेट कर पाते हैं और फिर मैसेज जो है वो फ्लो करता है एक से दूसरे को। तो अब आप जरा, आई मस्ट बी सेंडिंग मैसेज टू योर कोऑर्डिनेटर्स कि वो आपको किस तरह से करेंगे, और आई कैन डू दैट कि somebody who want to be volunteer, वो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, you're asking how we join group. सनिया गालिब सीआर बनाना है, ओके, बना है। सानिया और सनिया एडमिन व्हाट्सएप ग्रुप। अच्छा, व्हाट यू डू इज कि आप अभी बुक का पूछ रहे हैं कुछ लोग, क्वेश्चंस मैं देख रही हूँ, मैंने आपको बताया है कि बुक जो है मैं आपके साथ व्हाट्सएप पे कर दूंगी, आपको पीडीएफ शेयर कर लूंगी और नोट्स शेयर किया करूंगी, और साथ साथ स्लाइड्स भी, ठीक हो गया? और आपको जो है ओके,